హే హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. ఎలా ఉన్నారు? నేను మీ వినోద్. ఈరోజు వీడియోలో యాక్చువల్లీ మా ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరు వస్తున్నారండి. నేపాల్ సిటిజన్స్ అనమాట వాళ్ళు. యాక్చువల్లీ వాళ్ళు ఉండేది నాంజింగ్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ ఉంది కదా, అది చాలా పెద్ద యూనివర్సిటీ అనమాట. మన ఇండియా నుంచి కూడా చాలామంది మెడికల్ స్టూడెంట్స్ చదువుకోవడానికి వస్తారు దాంట్లోకి. సో మన తెలుగు వాళ్ళు కూడా స్పెషల్లీ చెప్పాలంటే మన ఆంధ్ర నుంచి తెలంగాణ నుంచి కూడా చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ ఈ నాంజింగ్ యూనివర్సిటీలో చదువుకోవడానికి వస్తారనమాట. ఇప్పుడు ఈరోజు వీడియోలో వచ్చే వాళ్ళు ఏంటంటే యాక్చువల్లీ నేపాల్ సిటిజన్స్. ఒక అతను వచ్చేసి ఎండి డాక్టర్, ఎండి చేస్తున్నాడు ఇక్కడ, మాస్టర్ ఇన్ డయాగ్నోస్టిక్స్, మన మెడికల్ టెక్నాలజీ. నాకు అంత ఐడియా లేదు. ఆయనతోనే మనం మాట్లాడదాం ఇప్పుడు. ఆయనతోనే మీటింగ్ మాట్లాడిస్తాను నేను మిమ్మల్ని. సో ఆయనే క్లియర్గా చెప్తాను మీకు. ఆయన ఎండి చేస్తున్నాడు ఇక్కడ చైనాలో. ఇంకొక అతను వచ్చేసి యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఆయన ఉండేది ఇక్కడ చైనాలోనే ఉంటాడు. ఆయన అంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ పార్ట్ అనమాట. మొత్తం ఆయన రిక్రూట్మెంట్స్ అంతా పిల్లలను పెట్టుకోవడము, అవన్నీ మేనేజ్ చేయడము, అడ్మినిస్ట్రేషన్ పార్ట్ అంతా నాంజింగ్ యూనివర్సిటీలో ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్కి ఆయన హ్యాండిల్ చేస్తారనమాట. తను ఆయన పేరు వచ్చేసి రోషన్, ఇంకా డాక్టర్ పేరు వచ్చేసి సచిన్ అనమాట. ఇద్దరు నేపాల్ సిటిజన్స్ అనమాట వాళ్ళు. సో వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది, ఏం సంగతి అని మీకు ఈ వీడియోలో నేను చేసి చూపిస్తాను. జస్ట్ మా గెట్ టుగెదర్ లాగా పిలిస్తే వచ్చారనమాట వాళ్ళు. మా నాంజింగ్ నుంచి వచ్చారనమాట. చాలా దూరం అనమాట. ఇక్కడ నుంచి ఇంచుమించు అరౌండ్ 5 కిలోమీటర్స్, 5 అవర్స్ టైం పడుతుంది జర్నీ. 5 అవర్స్ కాదు, 3 అవర్స్ టైం పడుతుంది బుల్లెట్ ట్రైన్లో అయితే. సో మనము ఈరోజు మొత్తం నార్మల్ గెట్ టుగెదర్ లంచ్. బిర్యానీ కుక్ చేసాను వాళ్ళ గురించి అని చెప్పేసి. బిర్యానీ ప్లస్ మందు అయితే బట్వైజర్ బియర్. సచిన్ ఏంటంటే హార్డ్ తాగాడంట, సో బియర్ తెప్పించాను దాని గురించి. ఇంకా రోషన్ గురించి వచ్చేసి బ్లాక్ లేబుల్ ఫుల్ బాటిల్ ఒకటి తెప్పించాను. సో ఈ వీడియోలో మొత్తం అవన్నీ నేను చూపిస్తాను. వాళ్ళతో ఇంట్రడక్షన్ నేను చేయిస్తాను. వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్లుంది చైనా గురించి, వాళ్ళు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారో అవి కూడా మీరు కేర్ఫుల్గా వినొచ్చు. వాళ్ళు ఏంటంటే కొంచెం మోస్ట్ ప్రాబ్లీ వాళ్ళు హిందీలోనే చెప్పగలుగుతారు. వాళ్ళకి మీకు తెలిసింది కదా, దే కెనాట్ టాక్ తెలుగు, సో హిందీలో చెప్తారు. మన తెలుగు వాళ్ళందరికీ హిందీ వస్తుందని నాకు తెలుసు, హిందీ అర్థమవుతుంది కూడా నాకు తెలుసు. దట్ ఈస్ ద స్వీట్నెస్ ఆఫ్ తెలుగు పీపుల్ అనమాట. తెలుగు పీపుల్ ఏంటంటే ఎస్పెషల్లీ వాళ్ళు మాట్లాడడానికి కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుండొచ్చేమో కానీ హిందీలో, బట్ దే కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. అది చాలా మంచి గుణం అనమాట యాక్చువల్లీ మొత్తం టోటల్ ఓవరాల్ సౌత్ ఇండియాలో, స్పెషల్లీ తెలుగు గురించి చెప్పాలంటే. బికాస్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, యాక్చువల్లీ ఈరోజు వీడియోలో నేను మొత్తం మీకు ఇవే నేను చూపిస్తాను వాళ్ళతోని. ఇంకా రోషన్ ఉన్నారు కదా అడ్మినిస్ట్రేషన్ పార్ట్ అని చెప్పేసి, అతనికి మ్యారేజ్ అయిందనమాట చైనాలో, చైనీస్ అమ్మాయితోని. సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి అర్థం. ఆయనకి 2 పిల్లలు ఉన్నారు, చైనీస్ పిల్లలు. సో ఆయన ఎలా పెళ్లి చేసుకున్నాడు, ఏం సంగతి కూడా మనము ఈ వీడియోలో మనం కవర్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, లెట్స్ స్టార్ట్. హై ఫ్రెండ్స్, మా ఫ్రెండ్స్ వచ్చేసారు. మేము ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసేసాము. సో మనము చిన్న ఇంట్రొడక్షన్ తీసుకుందాము. నేను చెప్పాను కదా, మీరు ఆల్రెడీ వినే ఉంటారు. సో నేను దాని గురించి ఎక్కువ డీటెయిల్గా నేను చెప్పాను మళ్ళీ. సో డైరెక్ట్ మన రోషన్ గారే చెప్తారు ఏం సంగతి ఏంటో. హౌ ఆర్ యూ? చాలా బాగుంది. సో या मैं तो नानजिंग से आया मिलने के लिए विनोद को. मैं नानजिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ. शायद होपफुली कोई भी मेरे स्टूडेंट भी हो सकता है, शायद दे मस्ट बी रिकॉग्नाइजिंग मी. लेकिन हम लोग के बहुत से स्टूडेंट हैं आंध्रा से, तेलंगाना से, रायलसीमा से, बहुत से पास करके गए. और लकीली आज मैं विनोद बुलाया कि चलो लेट्स कम टू यू, सो ही इज हियर. तो हम लोग आए आज मिलने के लिए. बहुत ही अच्छा लगा. इट्स वेरी हॉट, अभी बहुत गर्मी है, लेकिन ठीक ही है. बट वी केम हियर एंड लाइक मैं तो यहाँ पे 18-20 साल से रह रहा हूँ यहाँ पे. मैरिड एंड आई हैव 2 किड्स ऑल्सो. My wife is from China, but मेरे जो है I work as administration in the university. तो मैं तो शायद more than 20 countries के स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ दे आर फ्रॉम इंडिया. इंडिया में भी साउथ पार्ट से ज्यादा आते हैं. तो तमिलनाडु से है, वी हैव फ्रॉम तेलुगु स्टूडेंट ज्यादा है. फिर ओल्ड सिटी से भी है, बहुत से लोग हैं. तो इट्स बीन वेरी नाइस. I really enjoy coming here and I love my work as well. So hopefully I hope someone will recognize me and बोलेंगे कि oh I have seen Roshan sir in this YouTube channel. So it's very good. Yeah, I really enjoy being here, and especially thanks to Vinod, he hosted me here, and we have one more friend Anil here. So it's been a very pleasure. Although it's summer, we are staying inside and cooling off.
సార్ నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతానండి మన రోషన్ గారిని. సో హోప్ఫుల్లీ హీ విల్ ఆన్సర్ ఇన్ హిందీలో ఆన్సర్ చేస్తారు. మీరు చైనాకి వచ్చి ఇన్ని రోజులు అయింది కదా, మీన్స్ యు ఆర్ బీన్ ఇన్ టు చైనా ఫ్రమ్ సో మెనీ లాంగ్. సో హౌ డూ యూ ఫీల్ అబౌట్ చైనా? వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ? because I have seen transform China because मैं 2003 से मैं यहाँ पे हूँ, तो I have seen how China has developed and all. So they are very laborious and they did lot of things actually. ऐसा ही China अभी जो स्टेज में ऐसा नहीं हुआ, but I think we need to learn also. India and China, they are both in the same continent, Asia. So मेरे को लगता है कि like we can also learn from them and become like them because we need to have. मेरे को जो लगता है कि we need to be laborious, focus towards our work. क्योंकि और दूसरा ये कि they only have one party system here. तो हम लोग ये इंडिया में जो है मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो it keeps on changing. बट यहाँ पे जो है गवर्नमेंट जो डिसीजन लेता है everybody will follow. And other thing is communism, you cannot buy land and all, वो अपना है. But before when I came it was 1 child policy, फिर बाद में 2 child policy, अब तो 3 है. I already have 2 kids and I think I cannot have 1 more kids because यहाँ पे expenses is very high. ओके रोशन जी, आप और एक चीज बताइए रिगार्डिंग आपका एक्सपीरियंस से. आप नेपाल से है, सो कैन यू टेल अबाउट समथिंग अबाउट योर कंट्री? नेपाल इज आवर फेलो कंट्री एंड वी आर 22 लोग हैं, हम लोग तो आजू बाजू रहते हैं. So, आपका कंट्री नेपाल एंड इंडियाज रिलेशंस लाइक इट गोज टू द एजेस. बहुत से पुराने ऐतिहासिक रिलेशंस है बिकॉज हम लोग दोनों हिंदू कंट्री बोलते हैं. नेपाल इज लाइक मोस्टली हिंदू, but more than 90% ऑफ पॉपुलेशन दे बिलोंग टू द हिंदुइज्म. और इंडिया और नेपाल ही ऐसा कंट्री होगा जो आने जाने के लिए यू डोंट नीड पासपोर्ट, यू डोंट नीड वीजा. आप लोग कभी भी आ सकते हैं, हम लोग कभी भी इंडिया जा सकते हैं. बहुत से लोग नेपाल से तीर्थ यात्रा करने के लिए इंडिया जाते रहते हैं. इंडिया से भी आते हैं, जैसे पशुपति टेम्पल जो है महादेव का, बहुत ही फेमस है और हिंदू को एक बार जाना चाहिए. और बहुत से लोग जो ये कैलाश पर्वत जाते हैं, क्योंकि मैं भी मिलता रहता हूँ, दे गो फ्रॉम नेपाल. वो लोग नेपाल आते हैं, फिर नेपाल से कैलाश पर्वत जाते हैं. तो हम लोग का जो रिलेशन है वो अभी से नहीं, पुरातत्व काल बोलते हैं हम लोग, ऐतिहासिक से बहुत रिलेशन है. नेपाल इज अ वेरी स्मॉल कंट्री, शायद इंडिया का एक स्टेट से भी छोटा है, बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल. वहाँ पे टूरिज्म के लिए बहुत ही फेमस है. जैसे बहुत से लोग टूरिज्म के लिए आते हैं, हनीमून के लिए आते हैं, बच्चे लोग स्कूल से कैंपिंग के लिए आते हैं, हाइकिंग माउंटेन हाइकिंग के लिए आते हैं, स्कीइंग के लिए आते हैं, राफ्टिंग के लिए आते हैं. वेरी ब्यूटीफुल कंट्री. तो आप लोग अगर चांस है तो वेलकम, विल वेलकम यू विత్ ఎక్స్టెండెడ్ హ్యాండ్. థ్యాంక్ యూ రోషన్ జీ. ఫ్రెండ్స్, యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మనము మన డాక్టర్ ఎండి ఉన్నారు కదా, PhD सचिन सर तो चिन्ह इंटरव्यू తీసుకుందాం, ఓకేనా? हाय सचिन सर. हेलो. आप थोड़ा चाइना का बारे में बताइए प्लीज हमारा व्यूअर्स के. हेलो एवरीवन. मेरा नाम सचिन है. मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ. करेंटली मैं PhD कर रहा हूँ अभी गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में. मैं भी चाइना में बहुत साल रह चुका हूँ. मैंने MBBS इधर से किया. MBBS के बाद मैं अपने कंट्री नेपाल में जाके काम किया. उसके बाद फिर MD और PhD अभी कर रहा हूँ, मैं परस्यू कर रहा हूँ. होपफुली आई विल फिनिश नेक्स्ट ईयर. और चाइना के बारे में बोलने के लिए अब ज़्यादातर से मेडिकल फील्ड के बारे में पहले बोलता हूँ, क्योंकि मैं एज अ मेडिकल स्टूडेंट मेडिकली चाइना बहुत एडवांस्ड है अभी. अब बोल सकते हैं कि वन ऑफ द एडवांस्ड इन द वर्ल्ड टेक्नोलॉजी के हिसाब से और दूसरी बहुत चीज़ के हिसाब से अब बहुत एडवांस्ड है. और अब एक बड़ा कंट्री भी है चाइना और पॉपुलेशन भी बहुत है, इसलिए हॉस्पिटल्स भी इधर बहुत बड़ा हॉस्पिटल्स होता है, लाइक अराउंड मोर देन 1500 बेड्स, 2500 बेड्स. और सबसे वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट हॉस्पिटल भी चाइना में है. तो मेडिकली बहुत एडवांस्ड है. एजुकेशन भी अच्छा ही है. मगर अब इंडिया से भी बहुत स्टूडेंट्स आते हैं. पहले मेरे भी बहुत बैचमेट्स थे इंडियन दोस्तों से. शायद कोई दोस्त लोग शायद ये वीडियो भी देख ले. इंडिया में बहुत इंडिया पहले से ही, नेपाल में भी पहले डिफरेंट फील्ड्स में इंडिया से लोग पढ़ने आते थे, इसलिए पहले से ही इंडियन दोस्त बहुत है मेरे. और इधर आने के बाद भी मुझे चांस मिला कि बहुत इंडियन दोस्त और मिलने के लिए एक ही क्लास में पढ़े, इंडियन लैंग्वेज में बात किए,
खाना वाना खाएं, घूमें, ये बहुत अच्छा है, और साथ में पढ़ें, बहुत अच्छा है। हॉस्पिटल गए इधर, मगर एक बात ये है कि मैं सबको जो इधर पढ़ के गए हैं उन लोगों को मालूम भी है, और जो फ्यूचर में शायद अगर चाइना में फिर एजुकेशन परस्यू करने के लिए आने चाहते हैं, तो एक बात क्या है कि चाहे आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ने आए या चाइनीज़ मीडियम में पढ़ने आए, मगर चाइनीज़ लैंग्वेज इज़ मस्ट, क्योंकि यहाँ पे लोकल लैंग्वेज चाइनीज़ लैंग्वेज है। तो आप इंग्लिश में अच्छे हो, इंडियन लैंग्वेज में अच्छे हो, आप दो 4 6 10 लैंग्वेज बोल सकते हो, अगर चाइनीज लैंग्वेज आपने अच्छी तरह से पढ़ी नहीं। थैंक यू। अब बहुत कुछ बता दिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। सर, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप तो जब यहाँ पे कोरोना शुरू हुआ था, आप यहाँ पे थे चाइना में। कैन यू प्लीज टेल मी सम टिप्स, मीन्स आपका अंडरस्टैंडिंग से हिसाब से चाइना वाले इतना जल्दी कैसे कैप्चर कर लिए, मीन्स हाउ दे आर एबल टू कंट्रोल, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? मेरे हिसाब से ये तीन सेक्टर से उन लोगों ने कंट्रोल किया है। सबसे पहले क्या है कि एक गवर्नमेंट का पॉलिसी, दूसरा क्या है कि मेडिकली एडवांस्ड एंड मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा हुआ है इन लोगों का, और तीसरा क्या है कि गवर्नमेंट का एक पब्लिक को जो इकोनॉमिक असिस्टेंस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से दिए। अब कैसे मैं बताऊंगा कि अभी रोशन सर ने भी बोला कि इधर कम्युनिज्म है, एक पार्टी सिस्टम है, तो गवर्नमेंट का क्या होता है कि इधर गवर्नमेंट ने जो रूल बना दिया वो सबको फॉलो करना पड़ता है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है ज़्यादातर से, आप ज़्यादा ये बोले वो बोले नहीं होता है। तो एक सिस्टम और रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत अच्छी तरीके से, एक पॉलिसी इधर जो बना देता है तो पब्लिक सभी वो फॉलो करते हैं। तो इसके हिसाब से क्या होगा कि गवर्नमेंट का पॉलिसी अच्छा हुआ है, नंबर 1। और नंबर 2 कैसे हुआ कि जैसे मेडिकली मैंने पहले भी बोला कि एडवांस्ड है बहुत, तो हॉस्पिटल्स, मेडिकल डॉक्टर्स, मेडिकल नर्सेज, सभी मेडिकल पर्सनल्स वो बहुत एडवांस्ड इक्विप्ड और बहुत अच्छे हैं इसके हिसाब से। और एक हिसाब से क्या भी है, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो और डॉक्टर्स एंड मेडिकल पर्सनल ज़्यादा भी है। सो जहाँ पे ज़्यादा नीड हो गया तो सब मेडिकल पर्सनल्स को उधर पे भेज दिया, मगर इस हिसाब से जहाँ पे नीड है वहाँ पे ज़्यादा मेडिकल पर्सनल सर्विस के लिए पहुँच गए, तो उसमें मेडिकल स्ट्रेंथन ज़्यादा हो गया। और तीसरी बात क्या है कि इकोनॉमिक कैसे हुआ है कि जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया कि सभी पब्लिक को फ्री कर दिया कोरोना का ट्रीटमेंट। इसके हिसाब से क्या हो गया, तो आप बोले कि आपको अगर पर्सनली पे करना पड़ेगा तो वो तो बहुत आ जाएगा। आप बोले कि अगर हमको तो मालूम है, आप जनरल वार्ड में जाएंगे तो कितना खर्चा आ जाएगा, अगर आईसीयू में पहुंच गए तो बस वो तो बहुत ही महंगा पड़ता है। मगर इधर आपको घर में लेने के आने का जो एम्बुलेंस का चार्ज से लेके आप डिस्चार्ज होने तक का सब फ्री कर दिया। तो ये इकोनॉमिक असिस्टेंस क्या हो गया, तो क्या हो गया कि पीपल को अच्छा सर्विस मिला, अच्छा ट्रीटमेंट मिला, और इसके हिसाब से पीपल भी जो पब्लिक है वो लोग भी ट्रीटमेंट के लिए राजी हो गए। मतलब कि कोई ऐसा नहीं हुआ कि मुझको जैसे कि आपको सिम्टम्स जैसा है, कुछ खांसी वासी हो गए, तो ऐसा नहीं है कि अगर हो सकता है ये एक जुकाम हो, क्योंकि अब हॉस्पिटल जाए तो बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा। इसके हिसाब से नहीं है कि अगर कुछ भी आपको थोड़ा भी दिक्कत हो गया तो पब्लिक खुद जाके टेस्ट करने लगे, क्योंकि इकोनॉमिक असिस्टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेरे ख्याल से जस्ट ब्रीफली कहें तो शायद ये 3 फैक्टर्स जो है उसने काम कर दिया। वाह, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। रोशन भाई, आप इंडिया गए बोल के बोले थे ना, आप हैदराबाद गए और आंध्रा को भी गए, सो आपका एक्सपीरियंस बताइए हमको आंध्रा एंड हैदराबाद के लिए। एक्चुअली इंडिया इज माई सेकेंड होम। मैं जब मेरा पढ़ाई वगैरह भी मैंने गुंटूर में किया था, सिद्धार्थ रेसिडेंशियल कॉलेज में गुंटूर में, फिर मैं तब सिद्धार्थ रेसिडेंशियल, हाँ तब, क्योंकि +2 करने के लिए मैं गया था उधर, तो आई हैव गॉट वेरी गुड बॉन्डिंग विद, तब तो आंध्र प्रदेश था, अभी ना तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा हो गया। सो आई ट्रैवल लॉट ऑफ प्लेसेस, ओंगोल से लेके विजयवाड़ा, वाइजाग, गुंटूर, तिरुपति। मैं बहुत, आई लव फूड, मैं फूडी, सो मेरे को बहुत से खाना पसंद है वहाँ पे। आई लव ईटिंग फूड देयर। फिर मैं ज्यादातर ओल्ड सिटी में भी रहता हूँ, फिर बिरयानी एंड ऑल, बाहर बावर्ची एंड ऑल, सो आई रियली लव। मेरा तो मैं आई हैव बीन टू हैदराबाद स्पेशली मोर देन 20 to 30 times। वाह, यस, एंड आई रियली एंजॉय। मैं बोलता हूँ ना, आई लव आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। आप पैराडाइज का बिरयानी खाए होंगे शायद? पैराडाइज का मैं फैमिली पैक खाता हूँ।
फैमिली Like पैक the big one, yeah. मैं पूरा सुबह से कुछ नहीं खाता, शाम में एक ही बार पूरा वो Family pack. 560 rupees में मिलता था. I just stay here and just eat. सो यू एंजॉय पैराडाइज Yeah, बिरयानी yes, yes, yes. वाओ ग्रेट Really, I love it. रोशन जी आप सर आप गए थे सचिन जी आप हाई इंडिया एनी टाइम मैं इंडिया रोशन सर के जितना तो नहीं घुमा हूँ मगर मैं 3 सिटीज गया हूँ इंडिया में. Okay. बेंगलोर, मैसूर Okay. और क्या पुणे पुणे ओके एज अ टूरिस्ट एज अ टूरिस्ट. वाह और ओके अच्छा है बहुत इंडिया क्योंकि अब थोड़ा हिंदी भी बोली देता हूँ तो उतना मतलब कि ट्रैवल के लिए उतना डिफिकल्टी नहीं होता है. तो और अच्छा है बहुत इंडिया बहुत अच्छा है. और मुझको अब मेरा नेक्स्ट प्लान है अब मैं इधर से वापस आने के बाद मेरा PhD खत्म करके वापस आने के बाद मेरा नेक्स्ट प्लान डेफिनेटली ताजमहल देखने का मेरा बहुत वाह ग्रेट डेफिनेटली गो देयर. थैंक यू रोशन जी हम सुने थे आप तेलुगु में भी बात कर सकते हैं हमारा व्यूअर्स के लिए थोड़े तेलुगु में वर्ड्स बता दीजिए सो दे विल बी हैप्पी मैं కొంచెం మాట్లాడు తెలుగు मेरे बहुत थोड़ा आता है एक्चुअली आई कैन अंडरस्टैंड मोर बट आई कैन नॉट स्पीक दैट मच నీ పేరేంటి मेरे को आता है ऐसा कि తిన్నా నేను తిన్నవా చాలా బాగుంది కూర్చో వస్తున్నా वर्ड्स आता लेकिन आई अंडरस्टैंड मोर मेरा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम South part, so I understand some Tamil and some Telugu as well. థ్యాంక్స్ అలాట్ వ్యూవర్స్ మీరు విన్నారు కదా మా రోషన్ జీ ఎట్లా అన్నారో కొన్ని వర్డ్స్ వస్తాయంట మీన్స్ అర్థమైపోతుంది పర్ఫెక్ట్ గా కానీ మాట్లాడడానికి కొంచెం కష్టమవుతుంది అంతే ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ prawn और fish. फिश प्रॉन बनाते थे फिर आराम से बैठते बातें करते फैमिली की बात करते ये करते लाइक अभी वो बड़ा डॉक्टर बन गया वाला फिश चावल फूल से बोलते हैं वो बहुत अच्छा. नहीं अच्छा बना दे गुड मैं अंकल खुद गया आई स्टेड 3 days इन हाउस वो लोग का बिजनेस था आई टोल्ड यू वो लोग जो पहले था वो टबैको में पेरेंट्स टू वर्क फिर उसके बाद अभी जो ग्रेनाइट वगैरह वहाँ पे था आई स्टेड देयर रियली एंजॉय घर पे रहा जो फील्स लाइक फैमिली है बहुत ही अच्छा आज ఓకే ఫ్రెండ్స్ రొమైలో అందైతే ట్రైన్లో ఎత్తగలిగా చూడండి వాళ్ళు సీరియస్ గా వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ లో మాట్లాడుకుంటున్నారు ब्राजिल गोल फर्कुलास लाथ्यो भएन त्यही त फुटबल त म्याच अब स्पोर्ट्स हो जे भए पनि राम्रो हो तर राम्रो चाहिँ तर भेरी कम्पिटिटिभ 1-0 गोलमा अड्कायो 1-0 उसमा फाइनल मेसीले हाल्न पनि हानेन नेमारले पनि हानेन गोल हानेन इट्स भेरी रमाइलो भयो तर राम्रो रमाइलो तर अर्जेन्टिना राम्रो खेल्यो जस्तो लाग्यो ब्राजिलले. अर्जेन्टिना धेरै राम्रो थियो आज कोपा अमेरिकाको धेरै राम्रो खेल्यो फेरि मेसीको फर्स्ट जहाँसम्म लाग्छ मलाई फर्स्ट इन्टरनेसनल कप हो क्यारे एज अ एज अ क्याप्टेन पनि होला उसको त्यो चाहिँ राम्रो भयो. रियोमा भएको गेम है हार्यो राम्रो भयो सबभन्दा खतरा चाहिँ ट्रेनमा अझ त्यो मोबाइलको नेटवर्क युज गरेर त्यसपछि त्यो हेर्ने चाहिँ सबभन्दा मेमोरेबल चाहिँ त्यो भयो क्या रमाइलो भयो. ठ्याक्कै यो आउने बेलामा पर्यो ठिकै छ अब विनोदलाई पनि भेटिहालेँ रमाइलो भयो. अब खानासाना खानेहरू सबै रमाइलो भयो. तो ये बना है नहीं तो बट फुल ऑटोमेटिकली आया था वो वुहान से. वो तो क्या है वो तो क्या हुआ है कि अब ये तो एक रिसर्च का बात है. हम तो नॉर्मली लोग ही तो हम ऐसे ही नहीं बोल सकते कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है तो बोल नहीं सकते. मगर अब अभी क्या हो रहा है कि इंटरनेशनल हिसाब से क्या हो रहा है कि एक बोल के वो लैब में टेस्ट करना है उसका इन्वेस्टिगेट करना है क्योंकि वुहान से ही जो ओरिजिनेट हुआ है उसके हिसाब से ये बात आ रहा है बाहर. अब ये WHO भी कंसिडर कर रहा है. अब टू सम एक्सटेंट चाइना में भी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ये कर चुके हैं ये लोग. WHO की मेंबर को भी बुला के इन लोगों ने मतलब जो इन्वेस्टिगेशन के लिए वो कर चुके हैं. अब और भी अब इंटरनेशनल सेक्टर से ये भी प्रेशर आ रहा है कि फिर भी ये रिसर्च करना है इन्वेस्टिगेट करना है कोरोना वायरस का एक्चुअल ओरिजिन कहाँ से हुआ है ये अभी भी उतना 100% श्योर और कॉन्फिडेंटली ये अभी तक आया बात नहीं है. तो इसलिए
अब फ्यूचर में, क्योंकि अभी तक तो क्या है कि एक प्रॉब्लम क्या है कि अभी तक चाइना में तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो ही चुका है, मगर स्टिल कोरोना वायरस स्टिल पैंडमिक सिचुएशन के हिसाब से अब बाहर सब बाहर बहुत से देश में तो अभी भी बहुत ही प्रॉब्लम है कोरोना वायरस का, बहुत ही इन्फेक्टेड पीपल है। सो शायद बाद में फिर इस बात का फिर भी एक अच्छी तरह से रिसर्च और इन्वेस्टिगेट होकर उसके हिसाब से शायद कुछ एक स्टडी के बाद जो रिपोर्ट आएगा वही फाइनल होगा। सो आपके हिसाब से ये चाइना इज मीन्स कोरोना वायरस इज नॉट ए ह्यूमन मेड? ये तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि अब मालूम नहीं, क्योंकि अब ये तो रिसर्च के बाद स्टडी के बाद ही पता चल जाएगा कि क्या है। थैंक यू। एक बार जो सार्स का जो मतलब कि एक टू सम एक्सटेंट एक एपिडेमिक या पैंडेमिक टू सम एक्सटेंट जो सार्स का उसको सॉल्व करने के लिए उसके वो भी एक मतलब वो भी एक टाइम था, उसके बाद भी टू सम एक्सटेंट चाइना बहुत एफेक्ट हुआ था उस वक्त पे, और उसके बाद मतलब उसके बाद भी कंट्रोल कर चुके थे वो लोग। और अब ये उसके बाद फिर कोरोना वायरस के बहुत सी टेस्ट भी मतलब और रिसर्च भी हो रहा है। सो आपके हिसाब से ये तो ह्यूमन मेड नहीं है, इट्स नॉट ए ह्यूमन मेड? वो तो बहुत मुश्किल है कहने के लिए, क्योंकि वो तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छी वो क्या है कि अब एक WHO विद इंटरनेशनल टीम, मेडिकल टीम और चाइना की मतलब कि हेल्थ सेक्टर या मेडिकल टीम के क्या बोले एक कोलैबोरेटिव रिसर्च इन्वेस्टिगेशन स्टडी के बाद ही पता चलता है। ओके, थैंक यू सचिन सर। థ్యాంక్ యూ। బిర్యానీ చాలా బాగుంది, చాలా బాగుంది, చాలా బాగుంది, చాలా బాగుంది. ప్యారడైజ్ గార్డ్ గుర్తుకొచ్చింది. मस्त Oh, good. నువ్వు తిను నీళ్ళు ఇస్తా. फेस करके मेरे को अभी भी याद है पिस्ता हाउस का हलीम, बाहर का बिरयानी, बावर्ची का बिरयानी చాలా బాగుంది, so good. See, even the Binod's biryani is good. It's better. वाओ, सुपर। చాలా బాగుంది. See, I love रायता, और ये रायता जो विनोद ने बनाया చాలా బాగుంది. आज जो विनोद जी ने बिरयानी हमको खिलवाए, मैं इतना खुश हूँ कि कितने महीने के बाद बोल सकते हैं कि शायद बस हाफ ईयर के बाद मैंने बिरयानी खाया हुआ है। इतना अच्छा हैदराबादी टेस्ट मैंने नहीं खाया हुआ है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। और मुझको ये भी एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में भी वो बुलाते रहेंगे। Absolutely sure आपको बुलाते रहेंगे। I'm really touched. I will service him Vinod to bhai. cook biryani, Hyderabad biryani. Yeah, Not sure, many. sure. We have only 30-40 students only. रोशन साहब आप बताओ, आप तो बताइए बिरयानी के बारे में। ऐसे बिरयानी कैसा? का प्लेट इतना साथ है, 2 बार इतना खाया मैं। Actually, I don't eat in the evening. But He want to complete this. आज विनोद ने जो बनाया बिरयानी मस्त। मस्त, very delicious, very good. Thank you विनोद, thank you very much. थैंक यू। हर एक यूनिवर्सिटी में सेक्रेटरी इज वेरी बिग, बिगर देन प्रेसिडेंट, ऐसा रिलेशन है। तो हम लोग का क्या है कि देखो ये मेरा स्टूडेंट है हैदराबाद से, ऑर्थोपेडिक में PhD के ऑर्थोपेडिक सर्जरी, PhD का उत्तर भारत में दिल सुखना करका है। अच्छा, और ये तो है
उसका नाम क्या है? मुस्तफा अंसारी। मुस्तफा अंसारी अंसारी PhD ऑर्थोपेडिक सर्जन। बेस्ट PhD किया है, ऐसा बहुत ही लेस है इंडिया और ऊपर से हैदराबाद में बहुत ही लेस, बहुत ही अच्छा। ये मेरा स्टूडेंट, ये है मुस्तफा अंसारी। ये उनका ही बैच है। ये इंडिया से। मैं बोलता हूँ इंडिया में कुछ भी हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी दीपली में। भाई आप तो बड़े भाई, हमारा क्या है, हम तो है नॉर्मल। The next day. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీకు కనుక ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే ప్లీజ్ మన వీడియోని లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మన ఛానల్ని, మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ చేసి నన్ను సపోర్ట్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్ బాయ్.